Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm a computer teacher. Now we will start lesson number 4, uses of computer. So now all of you look at in your textbook. We'll start lesson number 4, uses of computer. So now look at here, where we're using the computer. Computer used in home, school, hospital, then shop, hotel. So computer using in the lot of places. Computer is using in the lot of places. Now look at here. Nowadays computer are used in the many area of our living Google. ये क्या बोल रहा है कि नाउडेज कंप्यूटर का यूज़ मेनी प्लेस के लिए किया जाता है. यस, दैट इज़ द करेक्ट, दैट आर द यूज़ इन माई स्कूल टू. ये क्या बोल रहे हैं? यस, ये करेक्ट है. मेरे स्कूल में भी क्या होता है? कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. Let us learn more about the different uses of computer. What is it now? ये जो लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है. कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है. But before starting our these lessons, uses of computer, first I will show you with one video. First I will show you one video about this topic, uses of computer. So now all of you look at here. Dear friends, I am sure you all must have heard fairy tales. In such stories, the fairy has a magic wand in her hand, and she can do anything by using that wand. In the present world, a computer acts no less than a magic wand. You can do anything with this wonderful machine. A computer can do many kinds of work. That is why computers are used at different places for different purposes. Like schools, offices, railway stations, airport, hospitals, banks. I know you all must have seen computers at your school. So how many of you can tell me, what are computers used for in school? Think. Computers are used in school for teaching, learning and studying in lab, sending reports and circulars to students, keeping records of fees, preparing the results, maintaining records of books in a library, preparing question papers. How can we forget this one? Computers in offices. Even if you have never been to an office, you can still think of some points. Computers are used in offices for typing and printing documents, keeping a record of employees, sending and receiving emails. Computers in banks. Computers are used in banks for withdrawing money from an ATM. Withdrawing money from ATM is so much fun. If you have not experienced it, visit an ATM with your family member. Maintaining accounts of the customers. Keeping record of money. Computers at home. Computers are used at home for playing games, watching movies, maintaining monthly expenses, listening to music. You can also do your homework. Computers at railway stations and airports. Computers are used at railway stations and airports for reservation and cancellation of tickets, keeping records of
arrival and departure of trains and flights. Computers in hospital. Computers are used in hospital for keeping a record of the patients, diagnosing the disease, preparing medical report. The list can be longer, but I am listing the main ones. Computers in entertainment. Computers are used for entertainment too, like playing games, making drawings, watching and making cartoons. Computers are also used by architects in designing buildings, by designers in designing clothes and jewelry, in designing cars and aeroplanes. Computers are used by scientists to do research work. Now, revision time! I told you so many things about a computer today. Let us see how much you remember. Answers are already given below. Choose the correct answer. In dash, computers are used for preparing exam result. School, office, bank. Answer, school. Correct. In offices, a computer helps in dash documents, playing, drawing, printing. Answer, printing. Correct. At railway stations, computers help in booking dash, fees, tickets, recording. Answer, tickets. Right. In dash, computers are used for keeping a record of the patients. Schools, offices, hospitals. Answer, hospitals. You got all of them right. Very good. True or false? Are you ready? Yes. 1. Computer can do only one type of work. False. 2. In banks, computers are used for playing games. False. 3. Computers cannot be used in designing. False. 4. Scientists use computers for their research work. True. Good. Okay, I will ask you 3 questions. Answer them quickly. What is the use of a computer in a bank? To keep record of money. What is the use of the computer in designing? In designing clothes and jewelry. How can computers be used in entertainment? Playing games, making drawings, etc. Yay! I hope all of you like video. Now we'll start our lesson. So now all of you look at here. Computer can be used for number of tasks in school, railway station, airport, bank, hospital and office. Computer can be used for number of tasks. कंप्यूटर का यूज़ बहुत अलग अलग क्या होते हैं प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है. सो वेयर यूजिंग द कंप्यूटर स्कूल. कंप्यूटर यूज इन द स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ होता है. रेलवे स्टेशन यस. कंप्यूटर यूज इन द रेलवे स्टेशन. एयरपोर्ट यस. कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन पे भी किया जाता है, बैंक में भी किया जाता है, हॉस्पिटल में भी किया जाता है एंड ऑफिस में भी किया जाता है. ये जो प्लेसेस है वहाँ पे कंप्यूटर के यूजेस किया जाता है. सो फर्स्ट इज द स्कूल. वे आर यूजिंग द कंप्यूटर. स्कूल,
where are using the computer? School, railway station, airport, bank, hospital and offices. So first is the school. That all the spelling, these are the homework for you. Write in your notebook 5 times. यहाँ पे होम नहीं लिखा है, होम में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. सो स्कूल का स्पेलिंग SCHOOLS स्कूल्स. देन रेलवे स्टेशन RAILWAY रेलवे स्टेशन स्पेलिंग STATIONS स्टेशंस. एयरपोर्ट स्पेलिंग AIRPORTS airports. Bank spelling BANKS banks. Then hospital spelling HOSPITALS hospitals. And office spelling OFFICES office. So these are the spelling: school, railway station, airport, bank, hospital and offices. These are the homework. Write in your notebook 5 times. Now look at here. One of the tasks is maintaining record. This spelling also homework for you. Maintaining record. कंप्यूटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मतलब क्या होता है ना? लुक एट इट. अ रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड ऑब्जेक्ट. रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक क्या होना? कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना. क्या करना है? कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना. उसको बोला जाता है रिकॉर्ड्स. उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड्स. जैसे क्या होती है? हमारी नोटबुक होती है. ठीक है, हमारी नोटबुक में हम क्या करते हैं? जैसे मैथ की नोटबुक में मैथ का लिखते हैं हम. कंप्यूटर के होमवर्क कंप्यूटर में लिखते हैं. देन उसके बाद EVS का है तो EVS का है. मतलब हम पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसको हर एक अलग अलग बुक्स रखते हैं. क्या करते हैं? बुक्स रखते हैं. उसकी टेक्स्ट बुक भी अलग अलग होती है. सेम हमारी जो कंप्यूटर होती है उसमें अलग अलग फोल्डर होते हैं. उस फोल्डर को हम नाम देते हैं. और ये जो सारे फोल्डर्स है इसका यूज़ क्या है? उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं. और उसको मेंटेन कंप्यूटर क्या करते हैं? वो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं. क्या करते हैं? मेंटेन रिकॉर्ड. कंप्यूटर इज़ यूज फॉर अ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. कंप्यूटर का यूज़ मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स को. जैसे स्कूल में क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का नाम, उनका एज, देन उसके बाद उनकी उनके एड्रेस और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो. देन टीचर कंप्यूटर का यूज़ स्टूडेंट की क्या करने के लिए? रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए करेंगे. फिर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए करेंगे. लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ जो बुक है उनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए होती है. देन बैंक में जो कस्टमर आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किए जाते हैं. देन रेलवे स्टेशन पे जो टिकट निकालेंगे उनकी रिकॉर्ड निकालने के लिए है. तो ये जो कंप्यूटर है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज़ द होमवर्क. राइट इन योर नोटबुक 5 टाइम्स. सो स्पेलिंग इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. MAINTAINING मेंटेनिंग रिकॉर्ड स्पेलिंग RECORDS रिकॉर्ड. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. कंप्यूटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. Nowadays, computers are also used in designing cloth, buildings, car, etc. They also help in launching rockets and designing books and magazines. Nowadays, कंप्यूटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो हम क्लॉथ
पहनते हैं उसकी डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में बना के फिर उसको रियली में बनाया जाता है। पहले क्या होता है, वो क्लॉथ की डिज़ाइन कंप्यूटर में बना के फिर उसको शो करके फिर उसकी रियल में बनाया जाते हैं। और जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, हाउस होते हैं, उसकी भी डिज़ाइन पहले कहाँ पे बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर। देन उसके बाद हमारी बिल्डिंग हाउस बनते हैं। देन कार की भी डिज़ाइन पहले कहाँ पे बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको देख के फाइंड करके फिर कार बनाते हैं। देन लॉन्चिंग रॉकेट्स, जो रॉकेट्स होता है उसको लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनिंग बुक्स और मैगज़ीन, जो हमारी बुक्स है, जैसे ये वाली बुक्स है आपकी, क्या है ये बुक्स है, इसके ऊपर जो डिज़ाइन है पूरा लिखा हुआ है, ये कहाँ पे बनाया है, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर बनाई है, फिर उसकी क्या निकाली है, प्रिंट निकाली, उसकी फिर प्रिंट निकाली। सबसे पहले इसको कहाँ पे बनाया, कंप्यूटर के अंदर। सो बुक की जो डिज़ाइन होती है, मैगज़ीन की भी डिज़ाइन होती है, उसका यूज़ कंप्यूटर में मैगज़ीन की डिज़ाइन बनाने के लिए, बुक्स की भी डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो नाउ लुक एट हियर, लॉन्चिंग rockets. These are the homework for you. Write in your notebook 5 times. Launching rocket spelling LAUNCHING. Launching rocket spelling ROCKETS. Rocket. These are the homework. Write in your notebook 5 times. Then designing book. These are the homework. Write in your notebook 5 times. So designing books spelling DESIGNING. Designing book spelling BOOKS. Books. Then magazine spelling MAGAZINES. Magazine. These also write in your notebook 5 times. Magazine spelling MAGAZINES. Magazine. Let us now learn in details about the uses of computer in the different fields. तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट कौन से यूजेस होते हैं। सो फर्स्ट इज द स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल, कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में भी किया जाता है। सो विच यूजेस, टू मेक टाइम टेबल, जो टाइम टेबल होता है उसको बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो आपको टाइम टेबल, अभी भी आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल मिला था, देन आपके पास रेगुलर क्लासेस का टाइम टेबल बना हुआ होता है, तो वो जो टाइम टेबल जो आपको मिलता है वो कहाँ पे बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर। सो टू मेक टाइम टेबल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, स्कूल में। देन टू कीप अ फ़ी रिकॉर्ड, जो आप लोग स्कूल में फ़ी पेड करते हो, क्या करते हो, फ़ी को पेड करते हैं, तो उनकी डिटेल्स रखने के लिए, मतलब किसने कितने पैसे पे किए, किसके कितने बैलेंस है, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में। जो स्टूडेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में। टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में। देन टू क्रिएट अ सर्कुलर, जो आपको सर्कुलर मिलते हैं, मतलब नोटिफिकेशन मिलते हैं स्कूल से, तो उसको भी बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ सर्कुलर। देन टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, जो आपके स्कूल में लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में जो कुछ भी बुक्स है उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए
मतलब कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें इतने बुक्स है, उसमें से ये बुक्स ये स्टूडेंट को दिया है और ये बुक्स है ये वाले स्टूडेंट से रिटर्न आ गया है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है बुक्स की वो मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में। उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में। टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जो बुक्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में। टू हेल्प इन टीचिंग, जो आपकी टीचर है वो पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो आपकी टीचर है वो पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी कोविड की वजह से आप लोग कहीं पे भी नहीं, मतलब स्कूल पे नहीं जा रहे, हम लोग भी स्कूल में नहीं जा रहे, तो हमारी जो स्टडी है वो कैसे चल रही है, अभी ऑनलाइन चल रही है। तो हमारे पास मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर है, उसके वजह से हमारी स्टडी चल रही है। तो टीचर भी क्या करिए, कंप्यूटर का यूज़ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो कंप्यूटर का यूज़ पढ़ने के लिए भी किया जाता है। जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं स्कूल में। Now again we will see which uses of computer in the school. First use of the computer in the school to make timetable. टाइम टेबल को बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में। टू कीप फी रिकॉर्ड, जो फीस होती है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। दिस इज़ द रिकॉर्ड स्पेलिंग, दैट स्पेलिंग इज़ होमवर्क फॉर यू, राइट इन यूर नोटबुक 5 times। RECORDS रिकॉर्ड्स, क्या है, RECORDS रिकॉर्ड। टू क्रिएट सर्कुलर, सर्कुलर को भी बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नाउ दैट सर्कुलर, दिस आल्सो होमवर्क, राइट इन योर नोटबुक 5 times। सर्कुलर स्पेलिंग CIRCULARS सर्कुलर, CIRCULARS सर्कुलर्स। देन टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, जो बुक्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में। देन टू हेल्प इन टीचिंग एंड टू हेल्प इन टीचिंग, जो आपको टीचर पढ़ाती है वो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो दिस इज द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द स्कूल। Then next is the use of computer in railway station and airport. कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों भी जगह पे किया जाता है। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग टिकट्स, टिकट को बुक करने के लिए, टिकट को बुक करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टिकट को बुक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे। गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, जो ट्रेन अराइवल होने वाली है, डिपार्चर होने वाली है, जो टाइमिंग है ट्रेन का, जो टाइमिंग है, आने वाला टाइमिंग, जाने वाला टाइम, वो जो कुछ भी टाइम है ट्रेन का वो हमें कहाँ पे पता चलता है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे पता चलता है। क्यों पता चलता है? जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रहती है कि ट्रेन अराइव कब होगी, डिपार्चर कब होंगी। और एयरपोर्ट पे भी सेम, जो फ्लाइट है उसकी आने का टाइम, जाने का टाइम भी क्या होगी, वहाँ पे स्टोर होता है, उनको पता रहता है। कंप्यूटर हेल्प इन बुकिंग टिकट। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टिकट को बुक कर रहा है। तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे दोनों जगह पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो हम टिकट्स होती है, जैसे हम लोग भरूच से अगर हमें अहमदाबाद जाना है, अदरवाइज़ हमें दूसरे प्लेस कहीं पे जाना है, तो उस
हमें ट्रेन से जाना है, एयरपोर्ट से जाना है, अगर ट्रेन बस से भी जाना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, टिकट निकालनी पड़ती है। उसको क्या करनी पड़ती है, टिकट निकालनी पड़ती है। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो वो जो टिकट्स होती है वो कहाँ से देते हैं, वो टिकट हमें वो उनके कंप्यूटर से वो निकाल के देते हैं, वहाँ पे प्रिंटर से वो निकलती है। हम ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, हमारे घर में हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो जो हम टिकट ऑनलाइन घर से बुक करेंगे वो कैसे करेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये यूज़ करके हम ऑनलाइन भी टिकट बुक करेंगे। अगर हमें कहीं पे जाना है, टिकट बुक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक तो हम रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पे टिकट बुक करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें घर से करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए भी हमें लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों भी जगह पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर हेल्प इन बुकिंग टिकट, जो टिकट होते हैं उसको बुक करने के लिए। कंप्यूटर हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट टाइमिंग, जो फ्लाइट होंगी उनका जो टाइमिंग है उसमें भी वो बताने के लिए भी हेल्प होता है कंप्यूटर का। कहाँ पे एयरपोर्ट पे यूज़ होगा कंप्यूटर का, जो फ्लाइट है उसकी टाइम बताने के लिए। देन मेकिंग अ फिल्म्स, जो हमारी फिल्म्स होती हैं उसको भी बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। Computer help in creating the animation show in the films. So these animation write in the notebook 5 times. Animation spelling ANIMATIONS, animation shows. Animation is the process of preparing lively cartoon as soon as the television. जो हम आई होप ऑल ऑफ यू लाइक कार्टून्स, ठीक है, सब लोग कार्टून्स देखते हैं। तो रियली में कार्टून्स होते हैं क्या, नहीं होता है। तो ये जो कार्टून्स होती हैं, मूवीज़ होती हैं, एक सीरियल्स होती है, उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके उसको क्रिएट करते हैं। वो जो क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है एनिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन। तो एनिमेशन से वो क्या करते हैं, जो भी हमें जो कार्टून्स दिखते हैं वो क्या करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, देन वो बातें भी करते हैं। लेकिन रियली में कार्टून्स होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मूवी बनाते हैं देन उसके बाद सीरियल्स बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनिमेशन का यूज़ करके वो कार्टून्स को बनाते हैं। जो कार्टून बनाने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है एनिमेशंस। एनिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लाइवली, मतलब लाइव दिखता है हमें कार्टून्स एज सुन एज द टेलीविजन। हैव यू सीन मूवीज लाइक अ फ्रोजन एंड अ टॉय स्टोरी, जो मूवी है फ्रोजन है, टॉय स्टोरी है, टॉय स्टोरी 3 है, ये रियल में है क्या, नहीं है। उसको क्या किया है, एनिमेशन का यूज़ करके उसको बनाया। Oh, yes, could see amazing things in these movies. I bet that what a possible only with the help of कंप्यूटर। ये जो मूवीज़ होती है, कार्टून मूवीज़ होती है, सीरियल्स होती है, उसका यूज़ जो कार्टून्स मूवीज़ होती है वो कहाँ पे बनाते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं बाय यूजिंग द एनिमेशन। एनिमेशन एक प्रोग्राम होता है, उसको यूज़ करके बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज द यूज इन बैंक्स, computer use in the bank. So these will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood our today's topic. Thank you and have a nice day.